कि आप सब सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे से हैं और प्रभु ने हमारे जीवन में एक और मौका दिया है, एक और सप्ताह दिया है कि परमेश्वर का वचन को हम पढ़ सकें। As always, I enjoy the singing. The first 20 minutes, 15, 20 minutes, I enjoy the singing. I log in at 7:40 just to hear your singing. And even today, I enjoyed all your songs. मैं बहुत आनंदित होता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ कि आप लोगों का जो गाने को देख कर के और उसके साथ-साथ मैं भी 7 बजकर 40 मिनट में मैं भी जुड़ जाता हूँ और ताकि मैं भी उन गानों का आनंद उठा सकूँ। The one song which Brother Rajinder sang is a song that I had heard earlier from him. And I asked him to send me that recording. He sent me that, and I kept listening to it. I showed it to my wife, and she explained and told me it's such a beautiful song. It captures everything what the Lord has done or He can do. What a beautiful song that is. आज जो भाई राजेंद्र सिंह ने जिस गाना को उन्होंने गाया था, वो गाना मेरे दिल को छूने वाली एक गाना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया था कि वो उस गाना को रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजें और उस गाना को मैं बार-बार सुनता रहता हूँ और उसके साथ-साथ मेरे पत्नी को भी मैंने सुनाया। उस गाने का अर्थ को उन्होंने प्रकाश किया, तब मुझे समझ में आया जो गाना की सब कुछ बताता है। Very good. So, thank you very much for that lovely singing that starts the day and starts this ministry. We will now get on to the study of the spiritual gifts. और बहुत-बहुत धन्यवाद। जो गाना है, वो गाना आज हमारी सेवा को शुरू करता है। आइए हम लोग प्रभु का वचन की ओर चलते हैं। All right, now I'm going to share my screen and I hope you just let me know when you can see my screen. Yes, we are able to. All right, I hope you can see a single screen, right, Sibir? Yes, yes, yes. All right, I'm just checking because I'm using dual screens here. That's why I'm checking if you can see a single screen. All right, now, last 2 weeks, by the grace of God, I gave you an introduction to the spiritual gifts or the gifts of the Holy Spirit. और पिछले 2 सप्ताह से हमने जो आत्मिक वरदान हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को जो उसकी परिभाषा मैंने बताया था। All right. In fact, I forgot to say this. I did see Deepu also sing, I think, with his family. So welcome, Deepu, and it's nice to see you with your new life, with your family. Thank you very much, sir. Thank you very much. और God bless you and भाई God bless your wife. Okay. All right. Now, last 2 weeks, which is last Monday, which is 30th, and then on the 2nd, we covered the initial introduction to the gift of the Holy Spirit or the spiritual gifts. पिछले सोमवार को और उसके साथ-साथ 2 तारीख को हमने जो आत्मिक वरदानें हैं, उन वरदानों को हमने देखा था और उसकी परिभाषा को हमने चर्चा किया था। Honestly, before God, I confess, and before all of you, I confess, I am not capable to handle matters concerning the Holy Spirit and this subject. I am not capable at all. मैं विनम्रता पूर्वक आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा के अध्ययन के बारे में ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ और उस बातों को जो है हैंडल करने के लिए उसको नियंत्रण करने का मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। Because I believe I'm handling one of the subjects of the Trinity, and I'm not capable, I don't have the wisdom, I don't have the knowledge, I don't have the understanding to talk about what the Holy Spirit, one of the Trinity, can do. And I'm purely dependent on the Holy Spirit and nothing else. It's not my capability, it's not my efforts, it's purely the leading of the Holy Spirit and nothing else. I'm nothing. मैं परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि आज जिस सब्जेक्ट को जिस विषय को मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक ऐसा विषय है, वो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति के विषय में आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं सबसे पहले विनम्रता पूर्वक आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इस जो विषय है इसको पढ़ाने का भी मैं योग्य
काबिलियत नहीं है। Why do I keep saying this often? At least this is the third class I'm saying this, almost the same thing. Why am I saying it? मैं ये जो तीसरी जो मेरे लिए एक क्लास का अध्ययन का समय है, क्यों मैं ये सब बार-बार इस बात को कहता हूँ? Because the earlier two subjects that I handled was dealing with people, that is like Apostle Paul and Apostle John writing those letters. And then we studied about what they wrote inspired by the Holy Spirit. पिछले जो 2 विषयों को मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की थी व पढ़ाया था, वो एक ऐसा विषय था, वो दोनों व्यक्ति के लिखी हुई पत्री और दोनों व्यक्तियों के बारे में मैंने पढ़ाया था। एक तो प्रेरित पौलुस और दूसरा प्रेरित यूहन्ना, और उन्होंने जो लिखा था, वो लिखी हुई बात पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वे लोग लिखे थे। But right now, what we are doing is we are directly studying about the Holy Spirit and His capabilities in your life and my life. That is what makes me tremble, makes me fear as to whether I'm capable of delivering what God wants me to deliver. आज मैं इसीलिए इस बात के लिए मैं भयभीत हूँ, डरा हूँ, क्योंकि आज उस व्यक्ति के बारे में आज आप लोगों के सामने मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो व्यक्ति की आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य करता है, वो है पवित्र आत्मा। All right. And depending on the strength the Lord gives me and the guidance of the Holy Spirit, I stand only on that ground while I make this presentation to you. सबसे पहले तो मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा और उसके साथ-साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आप लोगों को आज इस वचन को इस विषय को मैं पढ़ाने वाला हूँ। All right. I have already sent you both the lessons that I was able to cover last week, Monday and Wednesday. I've already sent you that. I hope you've already got it. Whenever you have time, please go through it. One way that we will remember what is being taught or what is being given in the classes is when you keep reviewing it, when you keep reading it often. That's when it stays in your mind. और मैं जो पिछले 2 क्लासेस मैंने लिया था, उस क्लासेस का जो नोट्स है, आप लोगों को मैं भेज चुका हूँ। उस नोट्स को आप बार-बार पढ़िए। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आपका मन में नहीं बैठेगा। इसीलिए ही आपका मन मन में बैठे और आपका मन में रहे, इसीलिए ही मैं नोट्स भेजा हूँ, ताकि उन नोट्स को आप बार-बार पढ़ें। All right, I'll just review just one or two points of what we did last, and then we will go on to today's subject. और आज 2 और 3 बातों को मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। पिछले दिन हमने किन-किन विषयों के ऊपर चर्चा किया था, फिर बाद में आज की विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। We are now considering from 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 11 about the 9 spiritual gifts. और हम लोग जो है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 4 से 11 को आज हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो 9 ऐसे आत्मिक वरदान हैं। There are other spiritual gifts that are mentioned in Romans, in Ephesians. I'm not looking at that. My focus is purely on 1 Corinthians 12, verses 4 to 11, which talks about 9 spiritual gifts. That is what I'm focusing on. और अन्य भागों में भी आत्मिक वरदानों के विषय में जो है लिखा गया है, लेकिन उन वरदानों के ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। आज मैं सिर्फ पहला कुरिन्थियों जो 12 अध्याय में 9 ऐसे वरदाने हैं, उन वरदानों के ऊपर मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूँ। And I want us all to read one particular verse that you see on the screen, which is Acts chapter 2 and verse 38. आप लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक वचन आप लोग पढ़िए, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 38वां वचन। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Then you will receive the gift of the Holy Spirit. That is an important phrase that we find in Acts 2:38.
और प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 38वां वचन में हम एक महत्वपूर्ण पद को हम लोग पढ़ते हैं, तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। which means it has a reference to every believer. The gift of the Holy Spirit is there for every believer. उसका मतलब यह है कि हर एक विश्वासी के लिए आत्मिक वरदान है, जो पवित्र आत्मा का आत्मिक वरदान है। And that is why we are trying to understand from 1 Corinthians 12, what are these gifts of the Holy Spirit and how do we understand it and how can we be sure of using it or it is being used in our life. और इसीलिए आज हम लोग प्रेरितों के पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये वरदान है जो एक विश्वासी के लिए कैसा उपयोगी है और कौन-कौन सी ऐसे वरदानें हैं। As we continue to study about the spiritual gifts, my earnest prayer is that the Holy Spirit will speak to every one of us in every individual way because all of us have different needs. All of us have और different spiritual needs. So, according to that, my prayer is that the Holy Spirit should meet all our spiritual needs. मैं इसीलिए यही चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति का जो जरूरतें अलग-अलग हैं और हर एक व्यक्ति को आत्मिक वरदानों का भी आवश्यकता है। इसीलिए आज मैं इन आत्मिक वरदानों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। All right, okay. Now, last week, if you remember, on the Wednesday, the second class, I closed by saying that the 9 spiritual gifts can be divided into 3 groups or 3 categories. और पिछले दिन हमने यह चर्चा किया, शायद आप लोगों को याद होगा कि आत्मिक वरदानों को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। The first group is revelatory, or the first group is revelatory, or which means God reveals to a believer or to a Christian. That's the meaning, revelatory. और पहला जो ग्रुप है व पहला जो भाग है वो भाग ये है कि प्रकाशन के ऊपर। The second is power. It is the power that the Holy Spirit gives to every believer. और दूसरी भाग यह है कि जो सामर्थ की वरदाने, वो सामर्थ पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों को सामर्थ देते हैं। And the third group is inspirational or motivational. Through the gifts, the Holy Spirit motivates us, motivates the others, inspires us, inspires the others. That is what the Holy Spirit continues to do in your life and my life every day. और तीसरी भाग ये है कि जो वरदाने ऐसे हैं जो प्रेरणात्मक वरदाने हैं, वो प्रेरणात्मक जो है हर एक विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं और आज आपके और मेरे जीवन में भी उस पवित्र आत्मा प्रेरणा देते हैं। All of us as born again believers have the Holy Spirit within us. और जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में पुनर्जन्म पाया हुआ है, उस हर एक विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। And that Holy Spirit is one of the Trinity that is dwelling in my body, which is the living temple of God. और वो पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति विशेष है। वो पवित्र आत्मा जो मेरे शरीर में वास करते हैं, वो शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है। Now, when God asked Moses to build the tabernacle, he specifically mentions that why he wanted the tabernacle is because he wanted to dwell amongst his people, isn't it? क्या आप इस बात को नहीं जानते कि जब परमेश्वर ने मूसा को मेल मिलाप का तंबू को निर्माण करने के लिए कहा, इसीलिए कहा कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य के बीच में वो डेरा करना चाहते थे, वास करना चाहते थे। इसीलिए मूसा को जो मेल मिलाप का तंबू को बनाने के लिए कहा। क्या ऐसा नहीं है क्या? Now, in the Garden of Eden, you know, when God created Adam and Eve, God used to walk and talk with Adam every day. और एदन का वाटिका में आपको तो पता होगा, आदम और हव्वा के साथ जो है परमेश्वर उनके साथ चलते थे, फिरते थे, घूमते थे और उनके साथ वार्तालाप करते थे।
So right from the beginning until this very moment, right now that we are speaking right now, God's desire is to dwell amongst his people, to communicate with his people, to talk with his people, to converse with his people. This is his desire, constant desire. और परमेश्वर का यही एक बहुत आवेगता का एक इच्छा यही है कि परमेश्वर शुरुआती से लेकर के अभी तक अपने लोगों के बीच में वो बातचीत करना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो अपने अंदर हम लोगों के बीच में वो डेरा करना चाहते हैं। In the earlier days, the Lord spoke to the children of Israel through prophets, through judges, isn't it? और पहले समय में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के जरिए और उसके साथ साथ न्यायों के जरिए लोगों के बीच में परमेश्वर बात किया। But nowadays in the New Testament time, you find that God speaks to us directly. And how does he speak to us? Through the Holy Spirit, through the Word, right? That is how God continues to communicate with us. लेकिन नया नियम में परमेश्वर आपसे और मुझसे कैसे बातें करते हैं? न पवित्र आत्मा के जरिए, सीधे रूप में पवित्र आत्मा के जरिए, अपने वचनों के जरिए प्रभु आपको और मुझे बात करते हैं। So when the Holy Spirit is within you and me, he constantly desires to do something, to exhibit something through you and through me, always. That's his constant desire. और प्रभु यीशु मसीह का जो एक जब परमेश्वर का एक बहुत बड़ी एक आवेगता, बहुत बड़ी एक इच्छा है, वो इच्छा यही है, वो एक आकांक्षा यही है कि वो आपके साथ जो बातचीत करे और उसके साथ-साथ आपके बीच में वो डेरा करे। Now, these spiritual gifts are a way of manifesting how the Holy Spirit interacts with every one of us individually. और पवित्र आत्मा जो वरदाने हैं, वो पवित्र आत्मा क्या करते हैं कि आपके अंदर जो वास करते हैं, जो वरदाने हैं, वो वरदाने क्या करता है ना लोगों के सामने प्रदर्शित करता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे कार्य करते हैं। The Holy Spirit is with every believer. पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों के साथ है। But it is up to every believer how to use the power of the Holy Spirit within oneself. It's purely up to every individual. लेकिन हर एक व्यक्ति का जो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वह अपने ऊपर जो है निर्भर करता है कि उस शक्ति परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को वो कैसे इस्तेमाल करे। It is something like this. The Lord Jesus Christ, when he came into this world, the plan of salvation was drawn out and kept for every human being. His going to the cross, his dying, his suffering, his death, his burial, his resurrection is open for everyone. But those who choose the salvation, they are saved, is it not? क्या आप इस बात को नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, विश्वासियों के हर एक व्यक्ति के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए वो इस संसार में आए और उसके साथ साथ वो क्रूस उठा करके अब जो क्रूस पर जो है क्रूसार्पित हो गए थे, उस उद्धार का कार्य को जो है संपन्न किया था, वो उद्धार जो है सभी लोगों के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, वो ही व्यक्ति ही उद्धार पाता है। In a similar way, the Holy Spirit is within every one of us. It's up to us how we can take and use the power of the Holy Spirit in our body, in me and in you, and so that the other people, which is the believers, the body of Christ, and the people of the world are benefited because of you and me. That is why we have been created, isn't it? सो मेरे प्यारो, वैसे ही है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर के उद्धार का कार्य को जैसे संपन्न किया था और एक व्यक्ति चुन करके उद्धार पाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा जो है हर एक विश्वासियों के जीवन में वो रहते हैं, वास करते हैं। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस परमेश्वर के मंदिर में के जो कैसे जगह देते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो कलीसिया है वो परमेश्वर की एक जो प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है, वो शरीर के लोग
कैसे उसके लिए निष्ठा पाते हैं, कैसे उसके जरिए जो है वो लोग क्या है कि उसके जरिए फायदामंद होते हैं, कैसे वो लोग फायदामंद पाते हैं, उस बात आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। In 1 Corinthians 12 and verse 7, last time itself we considered the gift of the Holy Spirit is given for the benefit of everyone, which means of everyone in the body of Christ, which is the church. हम लोग उस दिन हमने चर्चा किया था, जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है, वो वरदान कैसे हैं? ना कलीसिया की जो उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए जो है, ये वरदानें दी गई है। Dearly beloved, a few things which I keep saying is not what I prepare. Certain things now, these few minutes that I've been speaking is something which I did not even prepare. And I'm telling you, as the Holy Spirit leads me, I'm sharing this with you. And that is why I take a little time to explain these things as the Holy Spirit leads me to mention a few things. कुछ बातों को मैं कभी-कभार तैयारी भी नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करते हैं, उसके अनुसार जो है मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को रख देता हूँ। All right. So now coming back to what you see on the screen, these are the three groups that all the 9 spiritual gifts are divided into. और ये जो 3 भाग हैं, वो 3 भागे जो हैं, वैसे 9 वरदानों को प्रकाशित करता है व दर्शाता है। All right. These notes, after I finish today's lesson, I will send it to all of you so you can keep it for your reference. Now, under these three groups, what are all the spiritual gifts that come under them? I've shown you on the screen right now. और वर्तमान में जो स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, वो स्क्रीन का जो बातें हैं, जो वरदाने हैं, 9 वरदाने हैं, उन 9 वरदानों को कैसे जो है 3 भाग में बाँटा जाता है, उस बातों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। Can also given you the references, the verses where you'll find this particular spiritual gift. और ये जो आत्मिक वरदाने हैं, उस वरदानों को आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ पर और कौन सी वचन में जो ये वरदाने मिल सकते हैं, वो रेफरेंस भी यहाँ पर दिया गया है। Well, quickly, let me go through this. Now, under the revelatory gifts, you first have the word of wisdom, the second is word of knowledge, and the third is discernings of spirit. और ये जो वरदाने हैं, ये वरदानों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? ना बुद्धि की वरदान, ज्ञान की वरदान और जो दूसरों की आत्मा को पहचानने की वरदान, ये वरदान क्या है? ना प्रकाशन की वरदान में आते हैं। All right, all these are found in 1 Corinthians 12, and these are the verses that you find on the screen. और ये जो वरदाने हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में आप लोग देख सकते हैं, 8वां और 10वां वचन में। All right. Now, under the power gifts group, you will find the gift of faith, the gift of miracles, and the gift of healing. और ये जो सामर्थ्य की जो वरदाने हैं, उन वरदानों में क्या देख सकते हैं? विश्वास का वरदान, आश्चर्य कर्मों की वरदान और उसके साथ-साथ चंगाई के बाद स्वस्थता करने की वरदान। Okay. Under inspirational or motivational gifts, you'll find the gift of diverse tongues, the gift of interpretation of the tongues, and the gift of prophecy. और जो प्रेरणात्मक वरदानों में आप क्या देख सकते हैं? प्रेरणात्मक वरदान में आप देख सकते हैं कि अन्य भाषाएं व विभिन्न भाषाएं और उसके साथ-साथ उसको अनुवाद करने भाषा का भाषांतर करने का वरदान और उसके साथ-साथ भविष्यवाणी करने का वरदान। I hope it's clear till now for every one of us. और शायद मैं समझता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। All right. Now, in 1 Corinthians 12, what we are considering now is we are considering the spiritual gifts. और पहला कुरिन्थियों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो है आत्मिक वरदानों के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। That is in chapter 12. और वो है 12 अध्याय। In chapter 13, we all know it is the love chapter or chapter of the love or love. The greatest chapter on love is what we find in 1 Corinthians 13. और पहला कुरिन्थियों 13 एक ऐसे अध्याय है जो कि एक प्रेम की अध्याय के रूप में हम समझ सकते हैं। And we all know that love is one of the fruit of the spirit. और हम जानते हैं
कि जो प्रेम है वो पवित्र आत्मा का एक फल है। Okay. And in 1 Corinthians 14 chapter, you read about the execution of the spiritual gift or the spiritual life. और हम लोग पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं उन जो आत्मिक वरदानों को आत्मिक जीवन में कैसे उसको जो है पालन किया जा सकता है, उसको कैसा व्यवहार व उपयोग किया जा सकता है, उस बातों को पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय में हम देख सकते हैं। I feel these three chapters are very important. That's the reason I'm calling out these three things for our understanding. और मैं समझता हूं कि ये जो 3 अध्याय हैं 12, 13 और 14, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इन अध्यायों को आपके सामने रख रहा हूं। There are two verses that I've given you, and I desire that we read that verses. So let's read 1 Corinthians chapter 12 and verse 1 first. और मैं 2 वचनों को आपके सामने मैंने इसमें दिया है। आइए हम लोग उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और पहला वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। Yes, I don't want you to misunderstand this or be ignorant of this. So that gives the caption or the subject matter for 1 Corinthians 12. और हम लोग देखते हैं कि हम जिस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हमारा जो विषय का एक सिरनामा व पढ़ने के लिए व इस विषय को पढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ाता है व उत्सुकता करता है। All right, let's also read 1 Corinthians chapter 14 and verse 1. That's also an important verse. और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। All right. Now, why I took these two verses is in 1 Corinthians 12 and verse 1, Apostle Paul is saying, I desire that you should not be ignorant of the working of the Holy Spirit or the gift of the Holy Spirit. मैं क्यों इन वचनों को लिया? इसलिए लिया कि प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पर ये कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप सब आत्मिक वरदान के विषय में अज्ञात रहो। Correct. That is in 1 Corinthians 12 and verse 1. और उस वचन को हम लोग पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पहला वचन में देख सकते हैं। Now in 1 Corinthians 14 and verse 1, you read Apostle Paul again is saying that he desires the special abilities, that we should also know the special abilities of the Holy Spirit. और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय पहला वचन में प्रेरित पौलुस यही चाहते हैं कि जो आत्मिक वरदाने हैं उन वरदानों का जो महत्वपूर्णता क्या है कि उस विषय को जो है वो बताने के लिए यहाँ पर इस बातों को लिखते हैं। Now I think we all must understand such a supernatural God we have, a sovereign God we have, because if you see in chapter 12 he says you should not be ignorant. Now as you progress to chapter 14 he says that you should desire. You see how the Holy Spirit is teaching us, how the Holy Spirit is guiding his people through Apostle Paul. I'm amazed at the way the Holy Spirit is leading his people to understand the scripture and to learn the scripture. मेरे प्यारो, हमारा जो परमेश्वर है कितना महान है, कितना सर्वभौम है वो परमेश्वर, कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। देखिए प्रेरित पौलुस के जरिए वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। कैसा ना, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और पहला वचन में हम ये देखते हैं कि आप आत्मिक वरदानों के विषय में आप अज्ञात नहीं रहना है। और 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि उन वरदानों के लिए आप जो है कैसे एक आकांक्षा, उन वरदानों को पाने के लिए कैसे एक इच्छा रखो, आकांक्षा रखो, उस बातों को यहाँ पर पवित्र आत्मा के जरिए वो प्रकाशन करते हैं। I hope you're understanding what I'm trying to say. मैं समझता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। Yeah, now the Apostle Paul did not go by saying that first of all
you must desire, and then second, you should not be ignorant. He did not put it that way. The Holy Spirit did not put it that way, isn't it? Ulta. He didn't put it ulta. और जो पवित्र आत्मा जो है उल्टा यहाँ पर लिखने के लिए नहीं दिया। सबसे पहले तो ओके ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी चीज को आकांक्षा करो और फिर बाद में उसके विषय में अज्ञात रहो। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले तो उन विषय को प्रति जो है आप अज्ञात आप लोग अज्ञात ना रहो, उसको पहला दिया। फिर बाद में उसको जो है ऐसा लिखा गया है कि उन वरदानों के लिए आप जो है इच्छा रखो, पाने के लिए इच्छा रखो, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। When the Holy Spirit in the Bible, in the scripture, all divine matters, spiritual matters, it is always done in an orderly way. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो कुछ करते हैं बहुत सही तरीके से करते हैं, बहुत सही So- तरीके से वो काम करते हैं। All right. So in 1 Corinthians 12, we read that he wants us not to be ignorant. He wants us to be aware, number one. And number two, in chapter 14 of 1 Corinthians, he says that we should desire the gift of or the abilities or the gift of the Holy Spirit. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में वो क्या कहते हैं कि आप आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात ना रहो। दूसरा पहले कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और पहला वचन में हम लोग देखते हैं कि आत्मिक वरदान पाने के लिए आप जो है इच्छा रखो व आकांक्षा रखो। All right. Now let's focus on the first group, which is the revelatory gifts. और आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रकाशन वाली जो वरदाने हैं, उन वरदानों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। Sibir, the screen is clear, right? Yes, it's everyone is very able to clear. see. All right. Okay. Now, revelatory gifts means God reveals his mind to his people. Can you hear me? Once again, please repeat. What I'm saying is, revelatory gifts means that God is revealing his mind to his people. प्रकाशन वाली वरदाने का अर्थ यह होता है कि परमेश्वर अपनी मन की बातों को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। How is he doing that? और वो कैसे कर रहे थे? He's doing by those three gifts that comes under this group. और वो जो है ये जो आत्मिक वरदाने हैं, उन वरदानों में से जो 3 भाग है, उस 3 भागों के जरिए परमेश्वर अपनी मन की बातों को लोगों के सामने प्रकट कर रहे थे। Many a times I've prayed, and I hope you also prayed, that Lord, reveal your plan to us, reveal your mind to us, reveal what you want us to do. Haven't we not done it? I've done it many times. और मैंने ऐसा प्रार्थना किया है, हो सके आप लोग भी ऐसे ही प्रार्थना करते होंगे। हे प्रभु, आप जो है अपनी मन की बातों को मेरे सामने प्रकट करिए, आप अपनी इच्छा को मेरे सामने प्रकट करिए। मैंने ऐसा बहुत बार प्रार्थना किया है। Because we all desire to live how God wants us to live, is it not? I think every believer desires that. और हर एक विश्वासी यही आकांक्षा और इच्छा रखता है कि परमेश्वर कैसा हम इस संसार में जीवन को व्यतीत करे, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करे, और हर एक विश्वासी यही चाहता है। Through this group of spiritual gifts called the revelatory gifts, we are now going to look at how the Lord reveals his plan, his desire, and what he has for the church. और आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का मन में क्या क्या है, इस प्रकाशन वाली वरदानों के जरिए आज हम लोग चर्चा करेंगे। I'm sorry if you find the screens repeating, but I felt it's important for us to understand the sequence, and that is why I keep bringing this back to our memory. Under the revelatory gifts, you got 3 gifts, which is the gift of the word of wisdom, the gift of the word of knowledge, and the gift of the discernings of the Spirit. This is the first group. और मैं बार-बार इन वरदानों को आपके सामने में लाने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण वरदाने हैं। ये वरदाने जो है प्रकाशन की वरदाने, देखिए कैसे जो है एक क्रमानुसार उन वरदानों को यहाँ पर सजा करके लिखा गया है। वो वरदाने क्या है? न बुद्धि की वरदान, दूसरा है ज्ञान की वरदान, तीसरा है आत्माओं को पहचानने की वरदान। All right.
Now, so under revelatory gifts, you find all the three things. So this is what we're going to study today. We're going to start with understanding what the word of wisdom is. और हम लोग देखेंगे ये जो आत्मिक वरदान हैं, उन आत्मिक वरदानों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुद्धि की वरदान क्या है। Why do we have to know what this gift is, the word of wisdom is? Why do we need to understand that? What is so important in that? और ये जो है बुद्धि की जो बुद्धि का वचन का वरदान ये क्या है, आइए हम लोग इसका अर्थ क्या है हम लोग आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। All right. Now, the spirit of wisdom means that the Holy Spirit gives you and me special insights about what's going to happen and और ये also जो gives some answers to what we are seeking. और ये जो बुद्धि का वरदान उसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आपको एक महत्वपूर्ण तरीके से क्या करते हैं ना, उन वरदानों को देते हैं ताकि अंदरूनी इस तरीके से जो है कुछ बातों को आपके सामने जो है प्रकाशन देते हैं ताकि आप जो है उस बातों को समझ सके। All right. So why does he give us insights? Why does he give us answers? और वो प्रभु जो है हमें क्यों ऐसे उत्तर देता है और परमेश्वर हमारे मन में जो है ऐसे बहुत सारे राज की बातों को वो खोल के देता है। Brothers and sisters, the Holy Spirit gives us these insights, gives us the answers as it comes from God's throne. It comes from God's place. और ये परमेश्वर जो है हमें बहुत सारे तरह तरह का विषय को हमारे सामने जो है प्रकट करता है और उसके साथ साथ उत्तर को देता है। ये कहां से आता है ना, परमेश्वर की सिंहासन से आता है, परमेश्वर की जगह से आता है। Now, we have seen it in the first class, I think, that when the Lord Jesus Christ, when he went, he said, I will send another person or another comforter. So he is a representative. The Holy Spirit is a representative of the Trinity who's dwelling with us, and he reveals God's desires, God's plans to us. मेरे प्यारो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब पहले क्लास में भी हमने देखा था कि पवित्र आत्मा क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं जब इस संसार छोड़ करके जाऊंगा तो आप लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा, एक जो तसल्ली देने वाला मैं भेजूंगा और वो तसल्ली देने वाला आकर के आप लोगों के सामने जो है जो राज की बातों को वो खोलेगा और उसके साथ साथ जो है प्रकाशन देगा। और वो पवित्र आत्मा आज हमारे सामने है, हमारे साथ है। All right. All right. So the Holy Spirit gives us insights, it gives us answers as it is coming from God for two reasons. For two reasons, He gives us. और हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमें उत्तर देता है और नई नई बातों को हमारे सामने प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि दो कारणों की वजह से। The word of wisdom is given, meaning God gives us insights, God gives us answers for two situations. One is when we are facing difficult situations, perplexing, confusing, troubling situations. और जब हम द्वंद्व में पड़ जाते हैं, जब हम लोग निरुत्साह व निरुपाय में हो जाते हैं, हमारे सामने जो है और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे परिस्थितियों में, द्वंद्व परिस्थितियों में वो परमेश्वर हमें उत्तर देता है और नई नई रास्ताएं दिखाता है। Yeah, that uttar is in the form of word of wisdom. That's the gift of word of wisdom. That's what we're considering now. और आज हम लोग देखते हैं जो उत्तर देता है वही बात को जो है वो बुद्धि की जो वरदान है उसमें आता है। The second reason is there are many circumstances or situations that Satan brings in our life, and how to handle that, how to overcome that, that comes through the word, the gift of the word of wisdom. सो हम लोग देखते हैं कि शैतान हमारे जीवन में क्या करता है, विभिन्न परिस्थितियों के जरिए हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याओं को वो उत्पन्न करता है, खड़ा करता है। ऐसे समस्याओं के परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमें
बुद्धि की वरदान के जरिए हमें कार्य करता है, हमें मार्ग दिखाता है। All right. Now, these situations, we are living in this world where we have satanic attacks. Quite often, Satan wants to hinder us. You see here, he wants to hinder us. He wants to hinder others, other believers. He does not want us to progress in our Christian life. And so, for that, it is important that the gift of the word of wisdom, that the Holy Spirit gives us answers directly from God. सो हम लोग देखते हैं कि ये जो बुद्धि की जो वरदान है, ये वरदान क्या होता है ना, हम मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे बाधाएं शैतान लाता है। मेरे जीवन में ही नहीं, सभी विश्वासियों के जीवन में, दूसरों के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे प्रतिबाधाएं लाता है। उन प्रतिबाधाओं का जो हम प्रभु के सामने जो जाते हैं, उसका उत्तर के रूप में जो विभिन्न रास्ताओं के रूप में ये जो बुद्धि की वरदान हमें मिला है, उसके जरिए हमें उत्तर मिलता है और उसके साथ-साथ दूसरे रास्ता भी हमारे लिए खुल जाता है। That is why the gift of wisdom is mentioned in the scripture. And that is the purpose why the gift of wisdom is given to every believer. और यही कारण के वजह से जो है, जो बुद्धि की वरदान आपके और मेरे जीवन में दिया गया है। All right. So when we talk about wisdom, are we talking about worldly wisdom? जब हम पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग जब बात करते हैं, क्या हम लोग ये सांसारिक बुद्धि के पवित्र आत्मा का जो वरदान का जो बुद्धि का जो वरदान है, उसके विषय में हम जब चर्चा करते हैं, Now क्या let's हम look at सांसारिक बुद्धि के ऊपर चर्चा करते हैं क्या? Now let's look at two verses. आइए हम लोग दो वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। All right. Joshua chapter 1 and verse 8. और यहोशू उसका पहला अध्याय 8वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। Let us see what the scripture says and what was being told to Joshua in chapter 1 and verse 8. और हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है और यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा था। आइए हम लोग यहोशू उसका पहला अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। This chapter 1 and verse 8 is the Lord speaking to Joshua after Moses passes away, or after Moses is being taken away from the face of the world. The next leader is Joshua, and God is speaking directly to Joshua. And let us see what he says here. और ये जो वचन है, मूसा को परमेश्वर ने जब अपने पास बुला लिया था, जो एक अभी नेतृत्व करने के लिए उसका अगुवाई करने के लिए कोई नहीं था, उस वक्त में परमेश्वर ने यहोशू को चुना है। उस वक्त डायरेक्टली यहोशू को परमेश्वर कैसे बातें करते हैं, आइए हम लोग पढ़ करके समझते हैं। यहोशू उसका पहला अध्याय 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतर पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Okay. Now, if you see the last portion of that verse, it says, only then you will prosper and succeed in all that you do. So हम लोग देखते हैं क्योंकि ऐसे करने से ही सब कामों में सफल होंगे और प्रभावशाली होगा। Which means the Lord was saying, when you do this, when you study my scripture, when you understand this, you will have all the wisdom that is required for you to be successful in this world as a leader, to lead my people. That is the meaning of that, isn't it? So, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब तुम मेरे वचन को तुम मानोगे, उस वचन के अनुसार जब तुम चलोगे, तो तुमको क्या मिलेगा ना, इस संसार में तुम सफल होगा और उसके साथ साथ प्रभावशाली होगा और तुमको हर काम करने के लिए बुद्धि मिलेगी। All right. Now let's read the second verse there, James chapter 1 and verse 5. आइए हम लोग दूसरा वचन को हम लोग पढ़ेंगे, याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय और 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। If you need wisdom, ask, and God, who is a generous God, will give it to you. That is what
is mentioned here. सो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं मेरे प्यारों, यदि आपको बुद्धि की आवश्यकता है तो आप उस परमेश्वर से मांगिए और वो परमेश्वर उदार चित्त के रूप में आपको बुद्धि देता है। So, dearly beloved, these two verses, or at least some verses that I know of, talks about worldly wisdom to deal with worldly matters. सो मेरे प्यारों, यहाँ पर मैं दो वचनों को ऐसा जानता हूं जो वचनों की जो सांसारिक बुद्धि को प्रकट करता है व दर्शाता है इन वचनों के जरिए। Now, the gift of the word of wisdom is not talking about worldly wisdom. It is definitely not talking about the worldly wisdom that is mentioned in these two verses. सो जो आत्मिक वरदानों में से जो वरदान है, बुद्धि का जो वरदान है, वो सांसारिक वरदानों के विषय में चर्चा नहीं करता, बा उस वरदान के ऊपर नहीं बताता। ये जो वरदान है, ये आत्मिक वरदान कुछ अनोखा वरदान है। All right. Well, let us consider once again as to why the word of wisdom is needed for God's people or for God's children. और ये जो आत्मिक वरदानों में से जो बुद्धि का वरदान है, ये वरदान विश्वासियों के लिए क्यों जरूरत है? It is given for three reasons. और ये जो वरदान है, तीन कारणों की The वजह gift of से the word दिया of गया wisdom है is for three reasons. और तीन कारणों की वजह से जो है ये आत्मिक वरदानों का जो बुद्धि का वरदान है, इसीलिए वो दिया गया God है। reveals His purpose. परमेश्वर अपने इच्छा को लोगों के सामने प्रकट करता है। God reveals His mind. और दूसरा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए दिया गया है। And God reveals His plan. और परमेश्वर अपनी जो योजना है, उस योजना को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए ये बुद्धि की वरदान दिया गया है। So the Holy Spirit helps us understand God's purpose, God's mind, God's plan through this gift called the gift of the wisdom, the word of wisdom. और परमेश्वर हमें जो आत्मिक वरदानों के जरिए जो बुद्धि का वरदान है, उसके जरिए परमेश्वर की जो इच्छा है वो लोगों के सामने वो प्रकट करने के लिए वो दिया गया है। परमेश्वर की मन को, परमेश्वर की योजना को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए जो है ये बुद्धि का वरदान को परमेश्वर ने दिया है। All right. Now, there's one thing we must understand. We know that we worship a God who is very, very, very wise. He is an all-knowing God and an all-wise God. और हम लोग जानते हैं जिस परमेश्वर को आप और मैं उसकी सेवा टहल करते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सर्वबुद्धिमान है, सब चीजों को जानने वाला परमेश्वर है। If God reveals His whole mind, His whole purpose, His whole plan to us, we will be devastated. We will not know what to do because God's wisdom is higher than man's wisdom, is more than man's wisdom, is it not? परमेश्वर जो है अपनी इच्छाओं को, अपनी मन की, अपनी योजनाओं को वो क्यों प्रकट करता है? क्योंकि इंसान जो है निर्बुद्धि है, उसकी बुद्धि जो है सीमित रूप से है, इसीलिए वो सर्वज्ञानी व सर्वज्ञानता का परमेश्वर उसकी योजना को, उसकी इच्छा को और उसके साथ साथ उसकी जो मन की बातों को वो लोगों के सामने प्रकट करे ताकि मनुष्य जो है उसके योजना के अनुसार चल पाए। So that is why God reveals a small portion, a very small portion of His purpose, His mind, His plan, as I told you earlier, depending on the situation that arises in our life. Only a small हमारे portion. जीवन में जो हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियां, जो विकट परिस्थितियां आते हैं, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर जो है अपना बुद्धि में से थोड़ा सा चीज जो है, थोड़ी सी वो प्रकट करता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी मन को और अपनी योजना को आपके और मेरे सामने प्रकट करता है। While I was preparing this slide, this example came to my mind, the example of Abraham. जब मैं इस स्लाइड को, इस भाग को मैं जब प्रस्तुत कर रहा था, तैयारी कर रहा था, उस वक्त मुझे एक बात याद आई, वो है अब्राहम का जीवन।
You remember when in the mid of the day when Abraham was sitting outside his tent, there are three men come. The Lord comes there along with two others of his angels. He comes there and he speaks to Abraham, and then he reveals the plan that he is going to give him his son, a son. All that. You remember that? Can you hear me? Can you hear me? अपने बाहर वो बैठा हुआ था। क्या आपको इस बात का याद नहीं है कि क्या हुआ है ना? उस वक्त जो है परमेश्वर अपने दो स्वर्गदूतों के साथ आता है और उन लोगों को अपनी इच्छा को वो जाहिर करता है कि Can you hear me? I can't hear you, Sibyl. pardon me once again, actually one phone call had come, that's why some problem was there. Please go on. All right. Okay, so that time when the Lord comes and his angels also come to visit Abraham, he goes and prepares a good meal and all that. I hope you remember all that. क्या आप लोगों को याद नहीं है? शायद आप लोगों को याद होगा कि जब परमेश्वर उनके घर पे आते हैं, उस वक्त हम लोग देख सकते हैं कि अब्राहम घर पे जाकर के उन लोगों के लिए बहुत अच्छा भोजन का व्यवस्था करते हैं। And before the Lord leaves, he says, "How can I not reveal my mind to my friend Abraham?" He says that, is it not? उस वक्त एक बात को जो है परमेश्वर कहता है कि अब्राहम जो मेरा दोस्त है, क्या मैं उसके साथ मेरी मन की बातों को मैं नहीं बताऊं, मैं शेयर नहीं करूं? Yeah, now read. I'll just give it the reference. Now Genesis 18 and verse 17. Let's read that verse. Genesis 18:17. Genesis 18:17. तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? All right. You see, this is an example of a word of wisdom. The word of wisdom, what you see here, the Lord is revealing to Abraham his plan. यहाँ पर आप लोग देखिए कि अब्राहम जो है, अब्राहम को परमेश्वर की योजना क्या है, उस योजना को कैसा प्रकट कर रहे हैं। Now here, what God is revealing is, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. यहाँ पर परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करते हैं। ये प्रकट ये है कि मैं सोदम और गोमरा को मैं जो है नाश करने वाला हूँ। Well, brothers and sisters, this is a beautiful example of the word of wisdom, the gift of the word of wisdom. This is a great example. मेरे प्यारो, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर जो एक उदाहरण को हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का बुद्धि की वरदान का एक उदाहरण। Okay, so God reveals a small portion of his plan to Abraham, and then Abraham starts advocating for Lot and for the righteous people in Sodom and Gomorrah. If there are 50 people, will you destroy it? If there are 40 people, will you destroy it? If there are 10, so on and so forth. So he goes on asking God to be more merciful, not to destroy that place, even if there is a righteous person there. I hope you all remember that. आप लोगों को एक बात याद होगा कि यहाँ पर जब अब्राहम को परमेश्वर अपनी मन की बातों को जब प्रकट करते हैं, उस वक्त क्या होता है ना, अब्राहम बिचौलिया का काम करते हैं, है ना। अब बिचवाई का काम करते हैं। उस बिचवाई के वक्त में अब्राहम ये गुजारिश करते हैं कि परमेश्वर, जब वहां पर 40 लोग होंगे, क्या आप उस देश को नाश कर देंगे? क्या 30 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, तो आप क्या नाश करेंगे? ऐसे जो है कि जो धार्मिक लोग होंगे तो क्या आप नष्ट करेंगे? ऐसे करके वो गुजारिश करते हैं। Dearly beloved, this is exactly what the Holy Spirit gives by this gift of the Spirit, the word of wisdom. God reveals a small portion of his mind to you and me through this gift, and it is for the benefit of the others, that something might happen, so that we can pray, we can seek God's favor, like how Abraham did. This is exactly how the word of wisdom, the gift of the word of wisdom works.
सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है ना? जो बुद्धि का वरदान है, वो कैसे कार्य करता है कि परमेश्वर अपना जो बुद्धि है, थोड़ा-सा आप लोगों के सामने और मेरे सामने वो प्रकट किया है, ताकि आप और मैं क्या करें, ना दूसरों का उन्नति के लिए, दूसरों का बढ़ोतरी के लिए आप और मैं प्रार्थना कर सके, आप में जो है के वचन पढ़ सके, सब कुछ कर सके, उसकी वजह से जो है परमेश्वर ये बुद्धि का वरदान दिया है और उस बुद्धि के वरदान के जरिए आत्मिक हो पाए, उस बात को हम समझ सकते हैं। Okay, so what is the impact of the word of wisdom, the gift of the word of wisdom? What is the impact? What is the result? How does it benefit? और ये जो आत्मिक वरदान का वरदान, वो बुद्धि का लाभ क्या है कि हमारे जीवन को फायदा हो सकते हैं। It affects or it impacts in two ways that you see, as you see there on the screen. और ये जो है दो तरीके से जो है प्रभावशाली है, आप देख सकते हैं स्क्रीन First of पर। all, first of all is to touch other people's life. The word of wisdom is given for the benefit of the others, to touch other people's lives. और ये जो बुद्धि का जो वरदान है, ये बुद्धि का वरदान इसीलिए दिया गया है कि दूसरों का जीवन में ये स्पर्श कर सके, छू सके, दूसरों का जीवन में कार्य कर सके। And second is to defeat the powers of darkness, which means to defeat all satanic attacks or whatever Satan is planning, to defeat that. The gift of the word of wisdom is given so that we know, we pray about it, and we ask God to intervene, exactly like how Abraham was doing for Lot and his family in Sodom and Gomorrah. सो हम लोग देखते हैं ये जो बुद्धि का वरदान इसीलिए दिया गया है कि ये जो है अंधकार की जो शक्तियां हैं, अंधकार की जो सामर्थ्य है, उन सामर्थ्य को हराने के लिए परमेश्वर ने ये बुद्धि का वरदान को आपको और मेरे को दिया है। और उसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, लूत जो है कैसे कि उस सोदम और गोमोरा में रह करके कैसे कार्य कर रहा था, वैसे ही आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का बुद्धि का वरदान दिया गया है। All right, I'll close with this slide. Now, the gift of the word of wisdom and the gift of the are closely related. ये हम लोग देख सकते हैं जो बुद्धि का वरदान और उसके साथ साथ ज्ञान का वरदान, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। The gift of the word of wisdom deals about future events or future things that are going to happen, like how God told Abraham that this is what he's going to do. It talks about future. सो ये जो बुद्धि का वरदान है, वैसे ही परमेश्वर जो है अब्राहम को कहा था कि भविष्य में वो क्या करने वाले हैं, वैसे ही जो है ये बुद्धि का वरदान हमें ये बताता है कि भविष्य में क्या होने वाली है। And then the gift of the word of knowledge is about the past or about present, what is happening. सो ये जो ज्ञान की वरदान इसीलिए दिया गया है, इसीलिए कि ये जो अतीत में क्या हुआ था और वर्तमान में क्या हो रहा है, उसको जानने के लिए क्या है न ज्ञान का वरदान दिया गया है। All right, okay. Now I think I will stop here. We will continue, God willing, on Wednesday. सो यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। यदि प्रभु का इच्छा होगा तो अगले बुधवार को हम लोग फिर से यही से हम लोग शुरू करेंगे। Okay, God bless you all, and thank you very much, Sibir. That was a nice translation, and I think I took a lot of liberties in giving out long sentences, but I think you did a great job. God bless you, and thank you all once again for this. We'll continue, God willing. Yes, uncle. Thank you so much. Thank you. सर बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर वचन जो आज आपने हमें बताया है वरदानों के विषय में, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और शिविर सर, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जो वचन अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके हमें मातृभाषा में बताए। सर आपको परमेश्वर आशीष करें। आज भाइयों बहनों, हम लोगों ने जो वरदानों के विषय में अध्ययन किया है, सीखा है, प्रकाशित जो वरदान हैं, सामर्थ्य के वरदान हैं,
प्रिय भाइयों बहनों, ये वरदान हमारे जिंदगी में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए, ताकि हमारे लिए प्रभु के दास सामुएल सर ने जो हमें अध्ययन कराया है, सर ने हमारे लिए अनुवाद किया है, ये हमारे जीवन से जाना चाहिए ताकि हम मसीह की महिमा कर पाएं। आइए हम लोग आज की सभा को प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में ब्रदर लालू प्रसाद भगत जी हैं बिहार से, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और सर के लिए और हम सब भाइयों को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। लालू भाई, जय मसीह की। जय मसीह ब्रदर। आइए प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस सुबह के बेला में पिता परमेश्वर आप अपने वचन से पिता परमेश्वर आपने हमें तृप्त किया प्रभु जी। आप अपने दास प्रभु जी सामुएल अंकल को प्रभु जी आपने जो पिताजी आपका वचन से बताने के लिए, वरदानों के बारे में बताने के लिए आपने जो सहायता मदद किया प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर जो वरदान के बारे में बताए हैं पिता परमेश्वर, उस वरदानों को अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए जो बुद्धि के वरदान के बारे में बताया गया प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर बुद्धि के वरदान में जो हम लोग सुना है प्रभु जी, उसको प्रभु जी जो जो हम लोग सुना है उसको फिर से रिपीट करने के लिए, फिर से बाद में देखने के लिए, फिर और उसको जीवन में इस्तेमाल करने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। ये प्रभु जी आप अपने दास सामुएल अब्राहम को प्रभु जी अंकल को आपने इस्तेमाल किया है प्रभु जी वचन देने के लिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरपूर किया है और भी पवित्र आत्मा से भरपूर कर दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम बुद्धि की वरदान को इस्तेमाल करने पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आप महान है प्रभु जी, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु है, आप सहायता मदद करने वाला परमेश्वर। आपने नेटवर्क को भी ठीक रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस जूम में पिता परमेश्वर जो प्रभु जी आपके दास है भाई रंजीत बाग को हम प्रार्थना में याद करते हैं प्रभु जी। आपने जो ये बटन दिया, बोल दिया कि जूम के माध्यम से लोगों को वचन सिखाए प्रभु जी, इस बीडीटीआई को हम प्रार्थना में याद करते हैं, सहायता मदद कीजिए। जितने भी हम लोग बैठे हुए पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, और पिता आप अपने दास को भी इस्तेमाल किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भाई शिविर कुमार बाग को हम प्रार्थना में याद करते हैं, उसे भी अनुवाद करने के लिए अच्छी रीति से आपने मदद किया प्रभु जी, और अनुवाद करके हमारे बीच में दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आने वाला दिन में और भी उस भाई को इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। ये प्रभु जी जो भाई लीडिंग कर रहे हैं पिता परमेश्वर, भाई जगबीर, उनको भी प्रार्थना में याद करता हूँ, सहायता मदद कीजिए पिता। और ग्वालियर कलीसिया को हम प्रार्थना में याद करते हैं, सहायता मदद उस कलीसिया के द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रशंसा तारीफ होने में सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को शुरू से अंत तक आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ले चला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जूम में जितने में बैठे हुए भाई बहन लोग हैं, सबको हम प्रार्थना में याद करते हैं, सभी को आपका चरणों में, आपके ज्ञान में, आपका डर में, आपका भय में जीवन बिताने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। समाधान महिमा इज्जत देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुंदर वचन के लिए, वरदानों के लिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you.